सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? क्या अब हो आ रही। हाँ। अब आ रही। तो लास्ट क्लास हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हम पहुंच गए थे? निकालो पेपर एक बार। अच्छा, CBSE 24 शुरू हो गया था हमारा। ऑप्टेन एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल डायपोल। Obtain expression for electric potential due to a small dipole of dipole moment P at a point R from its center for much larger distance compared to size of the dipole. So this derivation, if you remember, it is basically, no. This is for electric potential. हमने किया हुआ है, you'll find this in notes. नहीं, it is electric potential Kp cos theta by R square. Electric potential at any point. ये derivation आएगा. If you have electric dipole and its center is this is A, this is A. You'll find this derivation in notes for 3 marks. To derive formula for electric potential at any point, Kp cos theta by R square. If you substitute theta is 90, V will be 0 because if theta is 90, it will become equipotential, equatorial line. On the equatorial line, potential is 0. And if you substitute theta as 0 degree, it would be on the axial line, Kp by R square. So on the axial line, you have potential. On the equatorial line, it will be 0. So this derivation worth 3 marks. You can see it is there in the notes. Electric potential at any point. We derived it by taking distances R1 and R2. Drop a perpendicular. This is A cos theta. Drop a perpendicular. It is again A cos theta. R1 is R minus A cos theta. R2 is R plus A cos theta. And then you find potential at the 2 points and add them up. So you should derive it. Just learn it. Potential due to positive, potential because of negative. It is KQ by R minus A cos theta. And potential for negative charge is this R plus A cos theta. Take LCM, neglect A square cos square theta, and you get your answer. The answer is Kp cos theta by R square. So this was CBSE 2024 question. So whatever was there in the 2024 becomes important for this year. Second part is three charges, point Q, 2Q, and Q are placed at the vertex of equilateral triangle. If the potential energy of the system is 0, find the value of n. कर लो इसको अभी सॉल्व करो सेकंड पार्ट को. अच्छा क्वेश्चन है. Three charges are placed at the vertices of equilateral triangle. साइडो ट्रायंगल ए ले लो. पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जीरो करो उसको. डू इट नाउ. You know how to find potential energy of the system of charges. सर कौन सा क्वेश्चन है? CBSE 2024. तुम लास्ट क्लास में नहीं थी ना? नो सर। तुमने देखा नहीं फिर वीडियो? तुम बोल रही हो वीडियो देख लूंगी. सर अभी
कल तो पढ़ रही थी ना, फिर केमिस्ट्री आज एग्जाम था तो अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कैसा हुआ? ठीक हुआ। तो जो असाइनमेंट है ना, उसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कर रहे हैं हम लोग। सर, प्री बोर्ड की डेटशीट आ गई। आ गई? बधाई हो। हाँ सो इट इज पेज नंबर 4 पे जो टॉप में क्वेश्चन है वो यही है। कब कब है? सर, फिजिक्स 15 को है। 15 नवंबर? दिसंबर दिसंबर। अच्छा, इतना लेट है। फिर लास्ट है ना फिजिक्स, उसके बाद कोई नहीं। हम्म। 17 से प्रैक्टिकल्स है। अच्छा, स्टार्ट कब हो रहा है? नवंबर स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर को। ओके। तो पेज नंबर 4 पे टॉप में क्वेश्चन था ये, 5 मार्कर। एक पार्ट तो ये था उसका, फर्स्ट पार्ट। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, you'll find this in notes. This is a numerical, second part है, ये सॉल्व कर लो। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड you have to find the value of n. So if there are three particles, then three charges, then the system would have energy as this into this kq 2q by a plus this and this k q n q by a plus this and this k 2q n q divided by a. Energy of the system is k q1 q2 by r. The three charges, so there'll be three terms. इसको जीरो से इक्वेट कर दो। क्या कॉमन आ रहा है? के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन आ जाएगा। दिस वुड बी टू, दिस वुड बी एन, दिस वुड बी 2n, राइट? सो द वैल्यू ऑफ n कितना आ गई? इट विल बी 2 + 3n। n would be negative, -2/3। And rightly so, because energy तभी जीरो होगी जब एक चार्ज, एटलीस्ट वन चार्ज would be negative. Energy of the system will be zero if there is at least one charge equals to zero. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला है, 2024। करो, रीड करो। Equal amount of positive and negative charges are distributed uniformly on two halves of a thin circular ring as shown in figure. The resultant electric field at the center of the ring OC. The resultant electric field at center O is along OC. Direction पूछ रहा है ये। Now, first, my question for you is this: will the electric field be zero or not? ये बताओ मुझे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नहीं सर। हम्म। Will electric field be zero at O? नहीं, जीरो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये इंटीग्रेशन से आएगा सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक है? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका। अगर ये पूरा सर्कुलर रिंग पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता, ठीक है? तब उस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, बिकॉज diametrically opposite place elements will cancel out their electric fields, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता, तो इस केस में जीरो होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दिस रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस सेमी सर्कुलर रिंग इज नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिव, तुम क्या कर रही हो गरिमा? किससे क्वेश्चन बना रही हो? अश्मी को? हम्म। अश्मी आ गई क्लास में आज, कमाल हो गया। धन्य है भाग्य हमारे। अश्मी आज क्लास में है। और अश्मी, टाइम मिल गया तुम्हें? तबीयत खराब है सर। हाँ,
तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो ठीक करो ना। अब एग्जाम टाइम आ गया, अब तबीयत खराब तो कैसे कर सकते हो? तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। मैंने डायरेक्शन बता दी, मैग्नीट्यूड वी आर नॉट फाइंडिंग, वो इंटीग्रेशन से आएगा। जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, हाँ पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है। और अगर तुम इंटीग्रेट करके ना, तो लास्ट क्लास में मैंने कराया था, वहां पे तुम इंटीग्रेट, हमने वहाँ किया था 0 से 120 डिग्री, तुम 0 से 180 कर दोगे तो पूरा आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी वजह से भी इधर ही होगा, बिकॉज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करता है नेगेटिव पे। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, इन दोनों का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स ओसी। इनफैक्ट उस जो तुम्हें मैंने नोट्स दिए ना, मैंने ये भी डिराइव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इफ यू रिमेंबर, ये किया हुआ है मैंने, देख लेना। हालांकि अब ये नहीं है सिलेबस, फिर भी इन केस प्री बोर्ड में आ जाए तो। एक एलिमेंट यहाँ लिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक यहाँ लिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों के कंपोनेंट ये वाले कैंसिल हो गए, और फिर 2e cos को इंटीग्रेट कर दिया 0 से पाई, 0 से पाई सेमी सर्कुलर के लिए, एंड यू गेट योर आंसर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेंटर पे 0 होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं डिस्टेंस के साथ, so it's like this, it is maximum at x is equal to a/√2. So if you have a semicircular ring, we can derive formula of electric field, and it is like this. नोट्स में है ये भी। तो इसका आंसर क्या है? आंसर बता दिया ना, टुवर्ड्स ओई ओसी। पहला पार्ट सही है, असर्शन सही है। इट इज बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट ओ इज नॉट जीरो। सही कैसे हो गया? रीजन, नेट पोटेंशियल एट ओ जीरो होगा। नेट पोटेंशियल एट ए जीरो क्यों होगा? जितना पॉजिटिव चार्जेस है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल जीरो है। बिकॉज दोनों पे इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो जितना पोटेंशियल, देखो इसको ऐसे समझो, इफ यू हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा? इसका होगा k/r, इसका होगा -k/r, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका पोटेंशियल और इसका दोनों का कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें होता पोटेंशियल तो होता k/r। अगर पूरी रिंग होती जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता उसका पोटेंशियल होता k/r। तो इसका असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। मार्क्स हम लोग इसमें ही कटते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन में। पोटेंशियल एट द सेंटर जीरो है, बिकॉज सेमी सर्कुलर रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही दूसरी सेमी सर्कुलर रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स डायमेंशन, वो भी पता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, एंड इट इज E a cos थीटा। यूनिट कितना होता है इसका? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन कैसे निकालोगे? न्यूटन का m1 L1 T-2, कूलम का हो जाएगा 80, एंड मीटर स्क्वायर का ये, तो डायमेंशन ये आ गया m1 L3 T-3 a-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, m1 L3 T-3। इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक और यूनिट होगी वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी दो यूनिट हो गई, वोल्ट मीटर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट पार्ट करो। अ प्लेन सरफेस in shape of a square of side 1 centimeter is placed in electric field this much I cap मतलब along x axis such that the unit vector normal to the surface is given by this. Find the electric flux to the surface. कर लो, answer this question. एरिया वेक्टर दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है,
तो यू कैन यूज फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ए, यूज ई डॉट ए। सर एक ही आई कैप। आई कैप कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओ 60 का। तो ये हो जाएगा पॉइंट, एरिया तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो पहले। तो 1 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, होल स्क्वायर, ये हो गया एरिया। एंड द यूनिट वेक्टर में दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो यूनिट वेक्टर से, 0.8 I प्लस 0.6 J कैप, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है विच इज हाउ मच, 100 Newton per कूलम, या SI यूनिट्स में ऑलरेडी आई कैप ये हो गया। तो फ्लक्स इज E डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 I कैप, J कैप को मैं 0 ले लेता हूँ, इनटू 10⁻⁻⁴ बाहर रहेगा, 0.8 I प्लस 0.6 J, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें मालूम है, 10⁻⁴ माइनस बाहर निकाल दो, आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 इंटू 100, एंड दिस इज 0 इंटू 0.6, तो दिस इज 8 into 10⁻⁻³ voltmeter. Flux is a scalar quantity. यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना था ना एरिया को, बिकॉज एन कैप हमें दे रखा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ड्रॉ, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लोगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको पॉजिटिव यहाँ ले लेता हूँ, नेगेटिव यहाँ ले लेता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। तो दीज आर द फील्ड लाइंस। इस साइड में फील्ड लाइन ज्यादा होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा ना, ठीक है। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यू नो दैट इलेक्ट्रिक potential इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे दे आर क्लोजर। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक, लेकिन क्या होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना वहां पे क्लोजर बना होगा, यहाँ क्लोजर बनेगा। और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, दोनों की इस साइड में फील्ड लाइंस, तो वहां पे थोड़ा सा दूर बनाओगे। एंड दीज हैव सिलिंड्रिकल सिमेट्री, तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, डेंसिटी कम है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वुड बी फार्दर फ्रॉम ईच अदर। यह है इलेक्ट्रिक डायपोल का। अगर सपोज तुम बनाते फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या होता? तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होगा because they repel each other. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लेस दिस साइड, बीच में कम होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी। तो इन दैट सिचुएशन
बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे इस साइड में क्लोजर होंगे, इस साइड में दूर होगा, ऐसे बनाओगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ज़्यादा मत बनाना, लिमिटेड बना दो। इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज में होलोस्फेयर्स होंगे, होलोस्फेयर्स एंड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इट विल बी पैरेलल सरफेसेस लाइक दिस, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इंटेंसिटी में, then they'll be parallel, but they will become closer as you move to stronger electric field. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकम क्लोजर। इसका सेकंड पार्ट था, 2 point charges Q1 Q2 are located R1 R2 respectively in an external electric field, obtain expression for the potential energy। ये तो हमने किया हुआ है सिस्टम का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की एनर्जी होगी K Q1 Q2, एंड उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो R1 R2 हैं। ये Q1 चार्जेस का पोजीशन R1 है, ये Q2 चार्जेस का पोजीशन R2 है। तो ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए होती है R12 वेक्टर, मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो R12 वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1, फिर इसका तो मॉड ले लेना, तो R2 माइनस R1 मॉड। तो एनर्जी वुड बी K Q1 Q2 बाय mod R2 minus R1, or R1 minus R2 doesn't make a difference. Energy of a system of two charges. ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखो अब, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज बिन गिवन, इट्स प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ वो भी दे रखा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली चेंज टू 60 डिग्री बाय इंस्टेंट, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द डायपोल, ये बताना है। करो थर्ड पार्ट। हम्म हम्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तुम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड करते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, एंड दैट टॉर्क का डेरिवेशन आएगा 3 मार्क का, वो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। टॉर्क इज P क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड वाइज होता है P साइन थीटा। दिस टॉर्क विल टर्न द डायपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 to θ2, so the work done is get stored as energy, and this is P cos θ2 minus cos θ1। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। θ2 इज द फाइनल एंगल, θ2 तुम्हें दे रखा है, और θ1 0 दिया हुआ, बिकॉज इन द बिगनिंग डायपोल इज अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। θ1 0 दे रखा है। θ2 इज 60, θ2 को 60 डाल दो, P और E की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है रे ऑप्टिक्स का, बाय संडे दे शुड राइट इट, अदरवाइज विल आई विल नॉट चेक। ठीक है, I'll check remaining ones and then mark absent other one other। तो क्या आ रहा है इसका आंसर?
पी की वैल्यू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। cos थीटा टू cos 60 इज हाफ, cos 0 इज 1। तो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻25 जूल। So that is the potential energy of the work done. और सेकंड पार्ट पे आ जाओ, उसका इसमें चॉइस है, बेसिकली 5 मार्कर क्वेश्चन है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5 मार्कर क्वेश्चन 2024। A thin spherical shell of radius capital R has a uniform surface charge density sigma. Using Gauss's law, deduce an expression of electric field outside and inside the shell. जो डेरिवेशन हम ऑलरेडी नोट्स में कर चुके हैं, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसने चार्ज की जगह चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो यू कैन फाइंड द चार्ज, you can find the charge by using this formula. Q is equal to sigma into 4 pi r square. तो चार्ज इनसाइड आ जाएगा, चार्ज ऑन द सरफेस दो सिलेंडर वो आ जाएगा स्फीयर। देन यू नो हाउ टू डिराइव इट, गॉसेस लॉ यूज कर लेना। इनसाइड 0 आएगा, आउटसाइड आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इनसाइड 0 होता है, आउटसाइड डिक्रीजेस एज 1/r²। सरफेस पे मैक्सिमम होता है। तो गॉसेस लॉ का डेरिवेशन ये कर लोगे तुम लोग। इसका सेकंड पार्ट था, टू स्ट्रेट थिन वायर्स ए बी एंड सी डी हैव लीनियर चार्ज डेंसिटीज 10 माइक्रोकूलम पर मीटर and 20 microcoulomb per meter respectively. They are kept parallel to each other, distance of 1 meter. Find the magnitude direction of the net electric field at the point midway between them. Try this one. Two infinitely long conducting wires. Wires have charge densities और उनके बीच में मिडवे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पता फॉर्मूला पता हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये डेरिवेशन भी आ सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला। ड्यू टू अ थिन वायर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k lambda by r. Due to thin wire इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k lambda by r। वो यूज करना है, कर लो। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? दिस इज हाफ मीटर, दिस इज ऑल्सो हाफ मीटर। सो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k lambda 1 बाय आर। आर इज हाफ, मतलब 4k lambda 1। lambda 1 कितना दिया हुआ है पहले वाले वायर का? डेंसिटी 10 यूनिट रूट 10 माइक्रोकूलम दे रखा है ना। हाँ ठीक है। तो 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ एंड 10 माइक्रो, क्या आ गया? तो E1 कितना आ गया? 36 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम।
एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर अवे फ्रॉम होगी, पॉजिटिव है ना डेंसिटीज, E1 would be away from it. Electric field is a vector quantity. You have to see the directions also. इन प्रीवियस ईयर से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में. Similarly, you can find electric field due to सेकेंड वायर. सेकेंड वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ले लेते हैं. 2K lambda 2 by R. R is again half. तो 2 into 9 into 10 to the power 9. लैम्डा कितना है इसका? 20. तो ये कितना आ गया? अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन इधर अवे फ्रॉम इट होगा. तो in between the wires, the two electric field will cancel. They will be in opposite direction. So E net will be E2 minus E1. And direction क्या होगा according to diagram? Towards wire number 1, you can say. So due to infinitely long wire, electric field always varies as 1 by R. Inversely proportional graph बनता है हमेशा. If you have a thin wire, graph of electric field versus distance is like this, hyperbola. E proportional to 1 by R. अगर लैम्डा नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स द वायर होता है. अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाता, दोनों ऐड हो जाते हैं. इफ सपोज तुमसे पूछा तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर टू द राइट ऑफ द वायर नंबर 2, तो फिर क्या होता? पहले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता क्योंकि ये पॉजिटिव है. सेकेंड भी पॉजिटिव तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, दोनों का फील्ड ऐड हो जाते हैं. इफ द पॉइंट हैड बीन आउटसाइड, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे. नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है. दिस 4 मार्कर which is basically passage वाला क्वेश्चन. रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस. यू हैव 10 मिनट्स. करो. 70 मिनट 70 मार्क्स का पेपर तुम्हें करना पड़ता है 3 घंटे में. 3 घंटे कितने होते हैं? 180 मिनट्स. 180 डिवाइड बाय 70. तो बेसिकली 1 मार्क के लिए यू कैन स्पेंड हाफ, 2.5 मिनट्स. तो 4 मार्क का क्वेश्चन का मतलब 10 मिनट्स यू कैन स्पेंड. कर लो, 10 मिनट में आंसर करो. पैसेज पढ़ो एक बार पहले एंड देन आंसर. इट इज अबाउट डाइलेक्ट्रिक. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन में भी, पहले तो किया हुआ ही है. डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटिंग मटेरियल विद डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. दोनों का बिहेवियर सेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज E/K. Read the passage and then answer.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? पोलर डायपोल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड। ऑक्सीजन नहीं होगा, H2 नहीं होगा, N2 नहीं होगा, HCl होगा, ठीक है। HCl में हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव होता है, क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव होता है। सो HCl इज बेसिकली पोलर डायपोल, पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर HCl हो गया, फर्स्ट पार्ट का डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सच स्टेटमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज करेक्ट? A polar dielectric has a net dipole moment in absence of external field, which gets modified due to induced dipoles. A polar dielectric has a net dipole moment in absence of external field. इंडिविजुअल डायपोल का तो होता है, लेकिन मैंने बताया था टोटल या नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक्स कंटेन फ्री चार्जेस, ये भी सरासर झूठ है। द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सही है। The electric field produced due to induced surface charges inside a dielectric is along the external field। नहीं, ये ऑपोजिट होता है, मैंने पहली क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इसका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो गलत है। डायपोल, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट तो होते हैं, दे हैव इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, बट उनका जो वेक्टर सम है वो जीरो हो जाता है बिकॉज दे कैंसिल आउट ईच अदर। Individual dipole moment not zero, but sum of dipole moment in the absence of electric field is zero. So इसलिए ए भी गलत था ये। और जब तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो नॉन पोलर में, ये नॉन पोलर है, जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑफ फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स। तो ये जो डायपोल है इसमें इंड्यूस पोलराइजेशन हो जाता है, और dipole moment is always negative positive. The dipole moment and electric field are in the same direction. So B is the correct answer. When a dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charge capacitor, मतलब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया उसके बाद तुम इंसर्ट कर रहे हो, ये सारा तुम्हें मालूम है क्या होता है। ये ऑप्शन है इंक्रीजेस एनर्जी स्टोर्ड इन इट, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम है जीरो डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमने कंप्लीटली फिल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेचारा जीरो हो जाता है, मतलब लेस हो जाता है, कम हो जाता है, कंडक्टर में जीरो हो जाता है। एनर्जी, एनर्जी का तुमने देखा ही था क्या होता है, सारे डिस्कस किया था मैंने। यू इज इक्वल टू हाफ, किससे कंपेयर किया था, कौन से फॉर्मूले से किया तुमने? क्यू स्क्वायर बाई सी से किया था। क्यू कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, सी बढ़ रहा है तो यू डिक्रीज होता है। एनर्जी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ए गलत आंसर है, डिक्रीजेज एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेज। करेक्ट आंसर बी फॉर मुंबई, ठीक है। अनन्या फिजिक्स कब है? सो गई? मनन, नींद आ रही है तुम्हें? 17th हाँ, 17th को है। 17 दिसंबर, नवंबर? नवंबर। बीच में कुछ और है? मैथ्स है। अच्छा। 15th नवंबर को मैथ्स है, 17th नवंबर को फिजिक्स है। अब क्लास में मिस मत करना, जो भी डिस्कस कर रहा हूँ इसमें से आएंगे क्वेश्चंस, प्री बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर्स के, लास्ट यस। 3 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं। फोर्थ पार्ट है, an air filled capacitor with plate area n, plate separation d has capacitance c naught, a slab of dielectric constant K in area a and thickness d by 5 is inserted between the plates। सिंपल सा, इतना इजी है, मैं भी कर दूंगा ये तो। सी इक्वल सी नॉट डी बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, क्या आंसर है बताओ? थिकनेस अपने को दिए है डी बाय 5, टैलेंट कांस्टेंट कितना है? के। तो ये हो जाएगा डी बाय 5 के। डी कॉमन ले लो,
5 के एलसीएम ले लो। C0 5 के बाय 4 k+1, ऐसा कोई ऑप्शन है? C4 कैलकाटा, ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट करो। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2C0 6C0 first connected in series and then parallel across the same battery, the ratio of energy stored in the series combination to that of parallel। करो अपने आप से इसको। एनर्जी स्टोर्ड निकालो दोनों का, फिर रेशियो निकालो। ये भी CBSE 24 का क्वेश्चन है। पहले सीरीज में कनेक्ट किया, बैटरी से वी का बैटरी वोल्टेज वी ले लो। डायग्राम बना के करो, इजी रहेगा। सीरीज में ये हो रहा है। कैपेसिटेंसेस क्या दे रखी है? 2C0 एंड 6C0। तो सीरीज में पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दोनों में टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है। हो गया। तो सीरीज में क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर। दो के लिए करना होता है सिर्फ ये। तो 12C0/8, दैट इज 3C0/2। तो एनर्जी स्टोर, पहले सीरीज वाले में यूएस ले लेता हूँ। नेट कैपेसिटी इतना है, वोल्टेज इतना है, तो हाफ CV², ये एनर्जी आ गया, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो पैरेलल में इंडिविजुअल एनर्जी निकाल के ऐड कर दो। या वैसे भी पैरेलल में चाहो तो हाफ नेट कैपेसिटेंस 2C0 + C0 V² आ गया। दोनों को चुपके से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3C0/V²। और ये हो जाएगा 4C0V²। क्या आएगा आंसर? 3:16। So you can see that energy stored is more in parallel combination. Energy stored is more in parallel combination। ये भी तुम्हें पता लग गया। सेम वोल्टेज अगर कनेक्ट किया तो पैरेलल में एनर्जी ज्यादा स्टोर हो रही है। तो ये सारा पार्ट हो गया। इनफैक्ट पैसेज वाले क्वेश्चन तो इजी मार्क होते हैं, MCQ करना बहुत इजी होता है। 2024 का एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल है।
4 point charges, 1 microcoulomb minus 2 microcoulomb, 1 and 2 are placed at the corners of A, B, C, D, respectively of a square of side 30 centimeter. Find the net force acting on the charge 4 microcoulomb placed at the center of the square. कर लो, बहुत किए हमने फोर्स के क्वेश्चन, फिर भी कर लेते हैं एक बार. This is also CBSE 2024. पहले डायग्राम बना लो. स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो. चार्जेस 1 माइक्रोकुलम, इसको ए ले लो, -2 माइक्रोकुलम, दिस इज बी. सी पे कितना है? 1 माइक्रोकुलम. और डी पे कितना है? -2 माइक्रोकुलम. सेंटर ओ ले लो, उस पे चार्ज रखा है 4 माइक्रोकुलम. फाइव मिनट्स आंसर दिस. 3 मार्क का क्वेश्चन है ये. पहले चारों के फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर डायरेक्शन दिखाओगे, एंड देन नेट रिजल्ट. तीन मार्क का क्वेश्चन है ना, सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा. ये एंट्रेंस में तो 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, देख के पता लगा आंसर क्या है इसका. फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन सी ओ बिकॉज ऑफ सी, एंड फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ डी. नीड टू शो द वर्किंग. आंसर तो पता है हमें 0 है. के 9 × 10⁻⁹ into 4 microcoulomb, 1 microcoulomb divided distance square. Distance हम निकाल लोगे. OA distance will be equal to OB distance equal to OC distance equal to OD distance. सारी distances equal है and they are diagonal का by 2. तो A अगर साइड है तो A स्क्वायर by 2 हो जाएगा. रूट ले लेंगे तो √2a/2, दैट इज a/√2 होगा. डायगोनल इज √2a/2, आधा कर दिया उसको. a/√2 just for working, otherwise आंसर इज 0. तो ये फोर्स आ जाएगा तुम्हारा इतना आएगा ये. .8 न्यूटन आ रहा है. किया किसी ने? इफ यू डोंट शो दिस वर्किंग, मार्क्स नहीं मिलेंगे 0 लिखने के. देखो ये आ रहा है. ओबी में चार्ज डबल हो गया, ठीक है, तो उसका फोर्स डबल हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा ये. ओसी में सेम चार्ज है तो सेम रहेगा, 0.8 न्यूटन. ओडी में 1.6 न्यूटन. अब क्वेश्चन है डायरेक्शंस. सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. ये कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की वजह से कहाँ जाएगा? रिपेल होगा. दिस इज फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए. ये नेगेटिव है, तो ये सेंटर वाला चार्ज इस नेगेटिव से कहाँ जाएगा? अट्रैक्ट होगा. जिस पे फोर्स निकालना है उसका मोशन देखना है. So this positive will be attracted the force on O because of B.
दिस इज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ डी, एंड दिस इज, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव रिपेल होगा. So for two pair wise, they will cancel each other. Pair wise, the forces will cancel out each other. Net force will be zero. लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं. ये सबने लिख लिया. I'm changing the question now. Say this is positive and this is negative. अब क्या होगा? ऊपर के दोनों चार्जेस नेगेटिव है, नीचे के दोनों पॉजिटिव है. The new situation is this is 1 microcoulomb, this is positive 2 microcoulomb, this is minus 1 microcoulomb, and this is minus 2 microcoulomb. Question is the same only. करो. Now this time what is the net force and what is the direction of the net force? वही है जो बचपन में था. तो सब वैल्यू सेम रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज जाएगी. अब क्या डायरेक्शन होंगी? ये पॉजिटिव है, इसका फोर्स अपवर्ड होगा. फोर्स ये ए था ना, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए. ये नेगेटिव है, इसका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ सी. बी का फोर्स इधर होगा, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी, और डी का फोर्स भी इधर होगा, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ डी. एफ ओ डी ऐड हो जाएंगे, राइट? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. सो दिस इज √2 नहीं होगा, दे आर नॉट इक्वल. एफ ओ बी ऐड हो गए, तो ये कितना हो गया? 3.2 न्यूटन. ये हो गया 1.6 न्यूटन. तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट विल बी 3.2 का होल स्क्वायर, 1.6 का होल स्क्वायर, 2 बी कॉस 90, वो जीरो हो जाएगा. वो टर्म जीरो हो जाएगी, 1.6 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, बाहर आ जाएगा, तो जाएगा 4 + 1, 1.6 √5. ये आंसर आएगा. डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन इसके क्लोजर होगा ये, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं tan थीटा लेके, tan फाइव लेके. ठीक है, tan 5 होगा 1.6/3.2. tan 5 would be 1.6/3.2. tan 5 would be 1/2. इट वोंट बी परपेंडिकुलर, वैसे भी दोनों फोर्स डिफरेंट है. जो बड़ा फोर्स है उसके डायरेक्शन में फोर्स होगा. इसमें कोई डाउट है? इसका सेकंड पार्ट था 3 पॉइंट चार्जेस 1 picocoulomb each are kept at the vertices of an equal triangle of side 10 centimeter. Find the net field at the center of the triangle. कर लो अभी इसको भी. करो. फाइंड, उसमें वो भी निकाल लेना. ऑल्सो फाइंड नेट पोटेंशियल एट द सेंटर. फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट पोटेंशियल एट द सेंटर. इसका जो चॉइस में क्वेश्चन है उसमें नेट फील्ड भी निकालो सेंटर पे, और नेट पोटेंशियल भी निकालो, और एक वर्टेक्स पे भी निकालो सेंटर के अलावा. 4 पार्ट हो गए क्वेश्चन के. नेट फील्ड एट द सेंटर, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, नेट फील्ड एट द वर्टेक्स, वन ऑफ द वर्टिसेस, एंड नेट पोटेंशियल एट द वर्टिसेस. 15 मिनट है हमारे पास. पी को होता है 10⁻⁻12. साइड दे रखिए 10 सेंटीमीटर, को मीटर में कन्वर्ट कर लेना.
सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल, सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वन ऑफ द वर्टिसेस पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और एक वर्टेक्स पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? सेंट्रॉइड वर्टेक्स से डिस्टेंस था a/√3। किसी भी इक्विलर ट्रायंगल में सेंटर से डिस्टेंस, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस वर्टेक्स का होता है साइड डिवाइड बाय √3, वर्टेक्स बाय √3। पोटेंशियल सारे 4 पार्ट हैं। नेम कर लो ट्रायंगल को। चार्ज 1 पिको कूलम ईच। साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। Centroid से distance of the vertex is always a/√3। और बाई चांस अगर ये डिस्टेंस निकालना होगा तो इसका आधा होता है। ये भी काम आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। ये डिस्टेंस होता है a/2√3। एक डिस्टेंस वर्टेक्स का a/√3 होता है, बिकॉज सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बिकॉज ऑफ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बिकॉज ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बिकॉज ऑफ सी ने जी, जी एट ए, जी बिकॉज ऑफ बी, जी बिकॉज ऑफ सी। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लो। कितना होगा? k³ डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है a/√3। 3k³ वैल्यूज डाल के निकाल लेना, वहां निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? यू प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज एंड सी द मोशन ऑफ दैट। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो प्लेस किया हुआ है, इस पॉजिटिव की वजह से कहाँ जाएगा? रिपेल होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जी बिकॉज ऑफ ए, ये हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से रिपेल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जी बिकॉज ऑफ बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट जी बिकॉज ऑफ सी। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नीट्यूड में इक्वल है एंड उनके बीच का एंगल 120 है। So when three vector of equal magnitude act at 120 degree each, net resultant is 0. So net field would be 0. सेंटर पे नेट फील्ड 0 हो जाएगा। और तुम्हें स्टेटमेंट ये लिखना होगा वहां पे कि if three vectors of equal magnitude act at 120 degree each, the resultant is always 0। तब मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज इनको रिजॉल्व करके शो कर देना 0 कैसे है।
इसको रिजॉल्व कर देना, ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस 20 30, ई कॉस 30 ये कैंसिल हो गया, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे 2e sin 30, 2e sin 30 हो जाएगा ई सही है कैंसिल हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। पोटेंशियल कैसे करेंगे? पोटेंशियल किया किसी ने? पोटेंशियल एट जी बिकॉज ऑफ ए, पोटेंशियल एट जी बिकॉज ऑफ बी, पोटेंशियल एट जी बिकॉज ऑफ सी, तीनों का सेम होगा 3k³/a/√3। वैल्यूज बाल में डाल देना। सो दैट इज द नेट पोटेंशियल। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी जो कि एल्जेब्रिकली ऐड होगा, तो सबको ऐड कर लो एंड में जाके। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ी हुई थी अब पढ़ लो, अब इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा दोबारा से। क्यों गरिमास, है ना? अब पढ़ाई का टाइम आ गया है। अब मैंने पूछा था नेक्स्ट पार्ट इसका वर्टेक्स पे निकालना है। तो जब वर्टेक्स पे निकालोगे तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता नहीं है, तो सिर्फ दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ सी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। फिर इन दोनों को रिजॉल्व करके कर लो या वेक्टर फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, कितना होगा? k³/a²। इसका भी उतना होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये एंगल 60 है तो ये 60 हो जाएगा, 30 30 तो पूरा एंगल 60 हो गया। तो when two vectors are equal in magnitude act at 60, the resultant is √3 times each। तो perpendicular to BC, perpendicular bisector to BC, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, √3 k³/a² हो जाएगा। So you're finding electric field at the one of the vertices, √3 k³/a² हो गया। k³/a², स्क्वायर नहीं आएगा ये। और पोटेंशियल कैसे करोगे? पोटेंशियल एट ए, कोई भी चार्ज अपने ऊपर कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करता है, तो पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ बी, पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ सी। तो k³/a, k³/a, चार्जेस पॉजिटिव है ना, 2k³/a। एक मैंने नोट्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, असाइनमेंट में भी है, कि अगर चार चार्जेस हैं, सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, वो कर लेना, रिवाइज पढ़ लेना वहां से। एंड व्हाट शुड बी द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कौन सा चार्ज रखो यहाँ पे, कोई भी चार्ज अगर प्लेस करोगे तो उसमें फोर्स जीरो आएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो इस पे नेट फोर्स जीरो कब आएगा? जब ये चार्ज नेगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड में फोर्स को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने नोट्स में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, जरूर से कर लेना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा पेपर शुरू हो गया? टू 2023।
Electric dipole moment, P is kept in uniform electric field. E show graphically the variation of torque acting on the dipole, tau, with its orientation theta in the field. Find the orientation in which torque is zero and maximum. अच्छा क्वेश्चन है. बनाओ. ये लिख लिया. Electric dipole is kept. This is CBSE 2023. Torque magnitude wise is P sin theta. तुम्हें टॉर्क का वेरिएशन थीटा के साथ दिखाना है. कैसे करोगे बताओ मुझे. ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ टॉर्क विथ थीटा. कैसे ग्राफ बनेगा. एनीवन. फॉर्मूले से पता लग रहा है. टॉर्क इज वेरिंग विद साइन थीटा. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो कुछ भी नहीं करना है. साइन थीटा ग्राफ बना दो चुपके से. साइन का ग्राफ क्या होता है. और ज्यादा आगे बढ़ाना है तो 180 तक कर दो. बेसिकली साइन का ग्राफ बनना था. वेरिएशन ऑफ टॉर्क विथ थीटा. साइन ग्राफ. पी तो कांस्टेंट है ना. सो इट विल साइन ग्राफ. मैक्सिमम कब नजर आ रहा है तुम्हें ये. हम्म. नेक्स्ट करो. Potential difference V is applied across a conductor of length L and cross-sectional area A. How will the drift velocity of electron and density be affected if another identical conductor of the same material were connected in series with the first conductor? Justify your answer. ये तो इलेक्ट्रिसिटी का आ गया. गलती से आ गया इसमें ये. इसको छोड़ दो. ये इलेक्ट्रिसिटी का हम जब बाद में करेंगे डिस्कस. नेक्स्ट चैप्टर में अगली क्लास में करेंगे. मुझे याद दिला देना ये. कैपेसिटर वाला करो. एक में डायग्राम दे रखा है ना. कैपेसिटर सिस्टम ऑफ टू. ये पैसेज वाला क्वेश्चन आ गया वापस 4 मार्क का.
This is the circuit diagram. Find the equivalent capacitance between the plate points A and B in the given diagram. सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो तुम चाहो तो इसको थोड़ा यहाँ से डिस्कनेक्ट करो, इसको फॉर अ मोमेंट यहाँ लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस यू हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट। याद आ रहा है? व्हीटस्टोन की जरूरत नहीं है, दिस नॉट व्हीटस्टोन करना है तो व्हीटस्टोन से कर लो। हाँ, देखो बीच में कैपेसिटर दे रखा है, 5 कैपेसिटर है ना ये। तो ये बीच वाला हट जाएगा फिर। किससे? इक्विपोटेंशियल से नहीं होगा, बिकॉज बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है ना। अगर यहाँ सपोज कैपेसिटर नहीं होता तो इक्विपोटेंशियल तीनों पैरेलल आते, वो भी हमने किया हुआ है। अगर ये बीच में कैपेसिटर नहीं लगा होता और ये इस तरह से होता, दिस वाज ऑल थ्री इन पैरेलल हो जाता फिर ये। तो दिस इज ऑल थ्री इन पैरेलल। इक्विपोटेंशियल पॉइंट से करते हैं इसको, पर दिस इज नॉट दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये बीच वाला कैपेसिटर हट जाएगा। इट्स लाइक व्हीटस्टोन। सो इसको हटा दो नेक्स्ट सर्किट में, और फिर सीरीज पैरेलल से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। So in the next circuit, we again draw this. ये हो गया सर्किट। तो this C and this C series हो गया, this C and this C also in series. So the next circuit would be C and C in series कितना हो जाएगा? C by 2. Next C and C series C by 2, and this third one is in C only. And now they are in parallel. So parallel we can add them. Answer is 2C. C by 2 plus C by 2 plus C. तो जब भी 5 कैपेसिटर हों, so you can use balance bridge. Next. A dielectric slab is inserted between the plates of a parallel plate capacitor. The electric field between the plate decreases. Explain. जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज इसका रीजन एक्सप्लेनेशन चाहिए ना। ई बाई के तो फॉर्मूला है सीधा सीधा।
We'll explain that when dielectric slab is placed inside the plates of a capacitor, the dipoles, external field E naught था मान लो, ठीक है? तो dipoles will induce magnetic field which is in the opposite direction. So this is the field of the dielectric. As a result, E net कितना हो जाएगा? E net will be external field, पहले E था, अब हो गया ED, and which is E naught by K. So as electric field produced by dielectric is in opposite direction, dielectric dipoles or dielectric induces field in the opposite direction. That is why electric field decreases. इस पे और एक क्वेश्चन और भी आया था सिग्मा वाला, if you remember, वो इसी बेस्ड था. एक्सप्लेनेशन में फॉर्मूला भी लिख दो और थोड़ा लिखना भी है. As dielectric induces field in the opposite direction, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस. अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह तुम रख दोगे कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो फील्ड होगा कंडक्टर का वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा ई नॉट के बराबर. तो ई नॉट एंड ई दिस दे विल कैंसिल एग्जैक्टली. इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी हैव अ कंडक्टर और अ मेटल, देन इट विल दे विल कैंसिल आउट. इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखो जरा. टू slabs of dielectric constant 2K के filled space in between the parallel plate capacitor. Separation is D as shown. Find the expression for the capacitor in the system. Second part. तो पहले ही तुम आइडेंटिफाई करोगे ये सिस्टम सीरीज है पैरेलल है. प्लेट में कनेक्ट कर दो वायर ताकि इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं असाइनमेंट में, देख लेना. D/3 और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कांस्टेंट है 2K. Then we have this which is 2D/3 and इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K and the separation is D. So what kind of you can consider two capacitors in series, है ना? This system is equivalent to two capacitors in series. एक का लेंथ 2D/3, एरिया दोनों का सेम होगा डाइलेक्ट्रिक के. एक का डिस्टेंस D/3, एरिया तो वापस वही A होगा एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K. इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो. एंड डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली इंसर्टेड. तो C1 कितना होगा? 2K times epsilon naught A divided by D/3. C2 कितना होगा? K epsilon naught A 2D/3. सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है? 1/C से कर लो, वही बेटर रहेगा. यूज दिस. तो रिवर्स हो जाएगा ये. एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, बाद में फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेना. करो कितना आ रहा है. तो सी नेट होगा
6k एप्सिलॉन नॉट ए बाय 5d। यार है, मान लो इसी इक्वेशन को ऐसे दिया हो तब फिर a by 4 and this is 5a by 4. This is k, 2k and this is 3k. फिर क्या करते हैं? इस बार सिस्टम में दो कैपेसिटर पैरेलल में हो जाते हैं, एरिया अलग अलग होता, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सेम हो जाता. So this time the two capacitors would be in parallel. हम्म, कर लो ये भी, भगवान तुम्हारा भला करेगा. कभी कभी तुम्हें पढ़ाई का मौका मिलता है. अभी तुम पढ़े हुए थे अभी तक, अब पढ़ाई शुरू कर दी है. So CP would be C1 plus C2. C1 would be 2k epsilon naught A by 4 by D. This would be 3 times k epsilon naught. एरिया कितना है इसका? 5a by 4. नहीं, मैंने 5 गलत दे दिया. ये टोटल एरिया ये था ना. चलो ठीक है, 5 और 4 फर्क नहीं पड़ता. एंड देन ऐड करके खत्म हो जाएगा काम. इसके अब दो क्वेश्चन बचे. एक ये था, लास्ट क्या है 23 का. A charge q is placed at the center of a cube. The electric flux through the its face. 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? गॉसेस लॉ, q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो एक फेस से कितना निकलेगा? बस ये इसका आंसर हो जाएगा. एक और क्वेश्चन. द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 6. हाउ कैन दिस कैन बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग? तो तुम्हारे पास कई सारे कैपेसिटर्स हैं 4 माइक्रोफैराड के, और तुम्हें रिजल्टेंट 6 माइक्रोफैराड निकालना है. तो क्या करोगे? दो को सीरीज में लगा दो तो उनका 2 बन गया, एक को पैरेलल में लगा दो. दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दो 4 4 के, उनका रिजल्टेंट आ जाएगा 2. और फिर उसको पैरेलल में लगा दो 4 के साथ, तो रिजल्टेंट हो गया 6. थैंक यू वेरी मच, हो गया. सो नेक्स्ट क्लास में आई डिस्कस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन क्वेश्चंस ऑफ. एंड तुम्हारा अगला टेस्ट में मालूम है कौन सा है? डुअल नेचर का. ठीक है, जिन लोगों ने मिस कर दिया तो वो सीधा बोर्ड एग्जाम ही देंगे, क्या कर सकते हैं हम. एंडिंग द क्लास. थैंक यू सर.